Hello everyone. Today we will be doing tangents and normal. This is a topic under application of derivative. Learning outcome. You will able to interpret the derivative as a slope of tangent to the curve. Now first of all we will discuss about slope. अब slope है क्या? If a line makes an angle theta with positive direction of x-axis measured anti-clockwise, then the slope of a line denoted by m is given by m is equal to tan theta. You see the line make an angle theta with x-axis. This is the angle measured anti-clockwise. So slope is tan theta. Now next, how to calculate a slope if a line passing through the 2 points x1, y1 and x2, y2. So slope of a line through these 2 points will be y2 minus y1 divided by x2 minus x1, means difference of ordinate divided by difference of abscissa. Now we will see how to calculate a slope of a line whose equation is given. So slope of a line ax plus by plus c is equal to 0 is, it is minus coefficient of x upon coefficient of y. So coefficient of x is here my a and coefficient of y is b. Now let us see what is the condition for two lines to be a parallel and perpendicular. Two lines are parallel if first line have slope m1 and second line have slope m2. So for condition for parallel is m1 is equal to m2, and condition of perpendicularity is if two lines having slope m1 and m2 are perpendicular, means the product of slope is equal to -1. अगर आपको एक लाइन की स्लोप दे रखी है m1 तो दूसरे लाइन की स्लोप क्या होगी -1 by m1. It is a negative reciprocal. So condition of perpendicularity is m1 into m2 is -1. Now we will see how to calculate the slope of a tangent to a curve y is equal to fx at point x1 y1. अगर आपके पास एक कर्व की इक्वेशन है y is equal to fx, तो आप उसकी स्लोप उस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि टेंजेंट कैसे बनती है किसी कर्व को. तो दिस इज अ कर्व ब्लैक वन. अगर ये हमने रेड लाइन बनाई है और टेंजेंट लाइन क्या होती है विच टचेज अ कर्व एट अ वन पॉइंट. तो ये पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस इज x1 y1. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1 इज गिवन बाय it is derivative of the function at that point. अब पॉइंट क्या है? x1 y1. तो जब डेरिवेटिव निकाल के आप उसमें x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, it will give the slope of that tangent. For example, मैं एक कंसिडर करता हूं, if y is equal to x square, what is the slope of a tangent at 1, 1? So dy by dx is equal to 2x. So slope of a tangent at x1 y1 is given by, you substitute the value of x1 y1, so dy by dx at that point is 2 into 1, it is 2. The slope of tangent at this point is 2.
नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। अब पहले नॉर्मल क्या होती है वो देखते हैं, फिर उसकी हम निकालेंगे स्लोप। तो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज पी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। सो दिस इज अ टेंजेंट लाइन एंड दिस इज नॉर्मल। अब हमें पीछे हमने देखा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, -1। अगर मुझे एक लाइन की स्लोप पता है तो दूसरे लाइन की स्लोप क्या होती है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ dy by dx। सो अगर हमारे पास कर्व है y is equal to fx, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p is given by dy by dx at the given point p। आप dy by dx निकालेंगे और पॉइंट जो भी दिया है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी एट दैट पॉइंट, at point P will be, so M2 is negative reciprocal of M1, so slope of normal is negative reciprocal of dy by dx at given point P. Now slope of a line, and which line? It is a tangent line. अब टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कैसे निकाला जाता है, अगर आपके पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो स्लोप क्या होती है, dy बाय dx एट दैट पॉइंट p। तो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर ये आपके पास देखिए कर्व है, तो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब अगर ये लाइन एंगल थीटा बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, मेड एंटी क्लॉकवाइज, तो स्लोप विल बी, तो स्लोप इज इक्वल टू dy by dx at that point will be tan theta, would be equal to tan theta। and what happen अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा थीटा की वैल्यू, तो अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस हो तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो इसका मतलब dy by dx at that point is tan zero, and what is tan zero, it is zero। so हमने ये कंडीशन फाइंड आउट कर ली, if the tangent is parallel to x axis then dy by dx is zero। अब देखो अगर टेंजेंट जो है वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, अब टेंजेंट अगर y एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो दिस इज योर कर्व। अब ये कर्व की ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। अब यहाँ टेंजेंट जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, इट इज 90 डिग्री। सो dy by dx at that point p is equal to tan of 90, and what is tan 90, it is 1 by 0। तो अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, dx by dy at the point p is equal to 0 by 1, 0 by 1 is 0। तो यहाँ हमने रेसिप्रोकल लिया तो dx by dy at the given point is 0। तो कंडीशन क्या है, when the tangent is parallel to y axis then dx by dy is 0। Find the slope of a tangent to a curve y is equal to 3x raised power 4 minus 4x at x is equal to 4। So slope of a tangent क्या होती है, dy by dx at the given point। पहले हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, it is 12x cube minus 4। तो slope of a tangent at point x is equal to 4 क्या होगी, डेरिवेटिव में हमने जो पॉइंट है वो पुट कर देंगे, x is equal to 4, तो 12 x की वैल्यू आपके पास 4 है, वो सब्स्टिट्यूट करके आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 768 minus 4, it is 764। Now next is slope of a tangent to the curve at point x is equal to 10। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पे लगाएंगे क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे x minus 2 होल स्क्वायर एज इट इज, x minus 2
अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 और 1 का 0 हो गया, x माइनस 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया है। तो डेरिवेटिव को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन -1 ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दें x की वैल्यू 10 में, तो इट इज 8 square, 8 square is 64, minus 1 by 64 is a slope of a tangent to the curve. Now these two questions are homework for you. Now we have to calculate the slope of a normal to the curve x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta. अब एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, x भी आपके पास थीटा में है, y भी आपके पास थीटा में है, तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस, जिसमें x और y किसी तीसरे वेरिएबल में हो। तो ऐसे इसमें डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पहले dx by d theta is a is your constant, cos cube theta it is 3 cos square theta, and d by d theta of cos theta it is minus sin theta. So it is minus 3a cos square theta sin theta. Now we will calculate differentiating with respect to theta. So we'll calculate dy by d theta. So a is constant, sine cube means 3 sine square theta, and d by d theta of sine theta it is cos theta. It is 3a sine square theta cos theta. अब आपको कैलकुलेट करना था dy by dx। तो dy by dx क्या होगा? It is dy by d theta upon dx by d theta. So it is 3a sine square theta cos theta. It is a value of dy by d theta। नीचे हम वैल्यू पुट करेंगे dx by d theta की, तो 3a cos square theta sin theta। सो 3a कैंसिल आउट, एक साइन से भी ये साइन कैंसिल हो गया, एक cos से cos कैंसिल हो गया, इट इज साइन बाय cos इज माइनस tan थीटा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी वो क्या होगी? एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू, तो ये आप थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। थीटा tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 इज 1, सो इट इज माइनस 1। अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकालनी नहीं थी, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी थी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ dy by dx एट दैट पॉइंट, तो माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट होके स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1। And this is a homework for you. You have to calculate the slope of a normal to the curve. Now next, we have already seen if the tangent is parallel to x-axis, then dy by dx at that point is 0. So first of all, we'll calculate dy by dx of this curve. So dy by dx, if we differentiate with respect to x, so dy by dx is 3x square minus 6x minus 9. Since tangent is parallel to x-axis, अब देखो टेंजेंट अगर x-axis के पैरेलल हो तो आपने पीछे देखा है, तो नहीं तो आप इसको रिवर्स करके देख लेना। dy by dx क्या होता है वहां पे? 0। तो dy by dx जब आप पुट करेंगे इक्वल टू 0, तो ये क्वालिटी के फैक्टर बना लेंगे। पहले 3 कॉमन ले लेते हैं आप, और इस 3 इज पॉजिटिव तो ये छोड़ देंगे, और आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आफ्टर फैक्टराइजेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएंगी? फैक्टर्स आपके बनेंगे यहाँ पे x माइनस 3 एंड x प्लस 1। इंडिपेंडेंटली इनको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। सो हमें पॉइंट्स निकालने हैं। सो x की वैल्यू अगर माइनस 1 अगर हम y में सब्स्टिट्यूट करें इसमें, तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी? y की वैल्यू
it is 12. When you substitute x is equal to 3 in this equation, you will get the value of y as it is minus 20. So points are minus 1 comma 12 and 3 comma minus 20. So at these 2 points the tangent is parallel to x-axis. And these 2 questions are homework for you, and this is a you have to calculate the point where the tangent is parallel to x-axis, and in this question you have to calculate points when the tangent is parallel to x-axis and tangent is parallel to y-axis. Next, we have to find the points on the curve y is equal to x minus 2 whole square where the tangent is parallel to the chord joining the point. अब पहले तो dy by dx फाइंड आउट करते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो dy by dx is it is 2x minus 2 whole raised by 1 and d by dx of x minus 2. So 2x minus 2, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया. तो हमने इसको ऐसे लिख दिया. So it is dy by dx. So it represent a slope of a tangent. अब देखिए जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है? कॉर्ड ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स. अब वीडियो को रिवर्स करके देखना, अगर 2 पॉइंट्स हमें दिए हों तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप निकालनी हो, स्लोप ऑफ अ लाइन, अगर वो 2 पॉइंट से पास कर रही है. 2 पॉइंट्स हैं आपके पास 2, 0 एंड 4, 4. तो स्लोप ऑफ अ लाइन विल इज गिवन बाय y2 minus y1 over x2 minus x1. So slope is equal to 2. तो स्लोप हमने ये भी कैलकुलेट कर ली, ये भी कैलकुलेट कर ली. तो हमें पॉइंट फाइंड आउट करने हैं. हम क्या करेंगे, 2 लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप्स क्या होती हैं? स्लोप्स आर इक्वल. तो 2x minus 2 is equal to 2. तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया. तो 2x minus 2 is equal to 1. The value of x is 3. अब वैल्यू ऑफ x 3 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें. तो 3 minus 2 is 1. 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो गया. तो for x is equal to 3, the corresponding value of y is 1. So point is 1 comma 3. So point at 3 comma 1, the tangent is parallel to the chord joining these 2 points. Now in this question we have to find the point where at which the tangent is given by this. अब टेंजेंट की इक्वेशन हमें ये दे रखी है. तो अगर हमारे पास y दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज 3x स्क्वायर माइनस 11x. तो हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट हमारा x, y ही है. तो x, y के हिसाब से अगर मेरे पास ये लाइन दे रखी है तो इसको मैं इस तरह ट्रांसफॉर्म करके लिख सकता हूं. इट इज x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0. सो स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे निकाल सकते हैं? इट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज माइनस 1. तो स्लोप ऑफ लाइन, टेंजेंट लाइन इज 1. अब ये एट x, y, तो स्लोप इज 3x स्क्वायर माइनस 11 और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन 1 दे रखी है, तो हम इसे इक्वेट कर दिया. So 3x square is equal to 12, x square is equal to 4. The corresponding value of x are minus 2 and 2. तो 2 वैल्यूज आ गई. अब दोनों वैल्यूज x की हम सब्स्टिट्यूट करें फॉर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस 2 को, तो माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5 विल बी 19. अगर हम 2 substitute करें, the corresponding value of y is it is 8 minus 22 plus 5 is minus 9. तो पॉइंट्स आए आपके minus 2, 19 and 2, minus 9. अब हम ये देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर टेंजेंट लाइन को सेटिस्फाई करते हैं. जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा. तो हमने ये जो पॉइंट्स आए हैं ये हमने कहाँ सब्स्टिट्यूट करने हैं? y इज इक्वल टू x माइनस 11 में. सो पहले हमने सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ 19 इज इक्वल टू
-2 -11। अब देखिए ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेकंड पुट करके देखते हैं। y की वैल्यू -9, x की वैल्यू हमने 2 पुट की, तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, और ये सेटिस्फाई डज नॉट सेटिस्फाई। तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट लाई करेगा, तो ये पॉइंट लाई कर रहा है टेंजेंट लाइन के ऊपर, तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2, -9।